Hey, what's up, guys? Welcome to the SST classes. And students, today we are going to discuss about the geography. And in geography, we are going to start our second chapter, which is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. So, students, in the first chapter, we read about the resources. So, today we are going to read about some of the resources. Okay, in the first chapter, we classified them, we came to know about the different resources. But today, some of the prominent resources which we can sense around us, we are going to read about those resources. The first one in that series is the land. So land is among most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface. So as we know, the most abundant and most visible यूजफुल रिसोर्स विच वी कैन सी अराउंड एस इज द लैंड. ओके, और लैंड क्या है इस पूरे वर्ल्ड का केवल 30% एरिया में क्या है लैंड है. वी ऑल नो दैट रेस्ट 71% ऑफ द लैंड area is water. So we have only 30%, almost 30% area which is covered by the land. Okay, so the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. And as we also know that the distribution of population is depend on the climate and land. As we can say, in hilly areas, in desert, and in those areas where there are thick forests, human don't like to live there usually. Okay, and at the same time we will look at the river valleys and plains of rivers. Many civilization in the past and even today loves to live there. So some areas are densely populated just because of the land and climate, and then there are some areas which are sparsely populated, and then again it is due to the climate and land. Okay, so now we can say that land affects the distribution of population. Okay, so next is the land use. कि land के use क्या है. So land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, road, etc. So as we all know, means it has vehement use. Land has vehement uses. मतलब बहुत सारे uses है land के, आप दे सकते हो, जैसे माइनिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एंड अदर्स. ओके, सो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. और किस लैंड को किस तरीके से यूज करना है, इस पे भी क्या है, इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. लाइक माइनिंग के लिए कौन सी लैंड है, ओके, कौन सी सॉयल्स है, एग्रीकल्चर के लिए हमें कौन सी कैसे सॉयल चाहिए. सो वी ऑल हैव टू टेक those things into consideration, like availability of water वहां पर क्या है. इन सब चीजों के बारे में हमें क्या है देख, ठीक है, उन सबको हमें देखना होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम लैंड को क्या है दो भागों में बांट सकते हैं. एक प्राइवेट लैंड मतलब कि वो लैंड जो कि हम कोई इंडिविजुअल आदमी क्या है उसको ओन करता है, एंड दूसरी लैंड जैसे कम्युनिटी लैंड जिसमें क्या है सबकी भागीदारी होती है. लाइक आपके पार्क्स हो गए, आपके जू, आपके क्या हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए. तो ये सारे क्या हैं कम्युनिटी लैंड्स है. बड़े बड़े एरियाज जो आपके गवर्नमेंट ओन करती है उनको आप बोल सकते हो कम्युनिटी लैंड भी बोल सकते हो आप. ओके, नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज. सो एज वी नो इन द रिसेंट पास्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, द नीड ऑफ ह्यूमन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. तो जो आदमी की ज़रूरत है वो भी बढ़ी है. इसके कारण क्या है जो लैंड है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट्स पड़े. तो उसके कारण क्या कई चीज़ें लैंड के एग्जिस्टेंस को एक खतरा बढ़ा है. तो उसके लिए क्या है बहुत सारी चीज़ें अभी गवर्नमेंट की तरफ से या इन्वायरमेंटलिस्ट की तरफ से क्या है कोशिश की जा रही है. जैसे एफोरेस्टेशन हो गया, और पेस्टिसाइड्स का एक क्या है रेगुलेटेड यूज़ हो गया कि उनको कम मात्रा में और कंट्रोल्ड वे में क्या है हमें उसको यूज़ करना चाहिए. और भी बहुत सारे क्या है रिफॉर्म्स क्या हैं गवर्नमेंट्स एंड इन्वायरमेंटलिस्ट समय समय पे ले रहे हैं, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर लैंड विच इज़ वन ऑफ द इंटीग्रल, विच इज़ वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर ऑफ आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो. ओके, so the next thing we are going to read about is soil. So the thin layer of grainy substance, ठीक है, covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to the land. Land forms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. Okay, so land क्या होगी एक थिन सी लेयर है जो ग्रेनी सब्सटेंस, मतलब बिल्कुल कुछ ग्रेन टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा जो, ठीक है. तो ग्रेन्स जिसे हम बोलते हैं छोटे छोटे कणों का. तो ऐसे एक कणों की एक क्या एक लेयर है जो पृथ्वी के ऊपर है, उसको हम क्या बोलते हैं सॉयल बोलते हैं. एंड ये दिस इज
closely linked to the land. At the same time, the landforms also determine the type of soil, मतलब which type of soil is going to be there. Like in the desert, it's going to be different. In hill areas, it's going to be different. In tropical areas, it's going to be different. Okay, so the landforms, plateaus, so it's going to be different everywhere. So landforms, they determine the type of soil. Soil is made up of organic matters. ठीक है, तो सॉयल क्या ऑर्गेनिक मैटर से बन की होती है, बिल्कुल जो कंपोज होते हैं, डिकोज होते हैं, पेड़ पौधे डिपोज हो गए तो क्या सॉयल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं. इसके साथ साथ विदरिंग जो होती है, वेदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब पहाड़ होते हैं या चट्टाने होती है जो लगातार वहां पर हवाई चलती है, तो उनसे क्या होते हैं, वो विदर होते हैं, टूटते जाते हैं, घिसते जाते हैं. एंड इन वेदरिंग के कारण क्या है, रॉक फॉर्मेशन होता है और सॉयल फॉर्मेशन होती है. ओके, नेक्स्ट इज द फैक्टर्स ऑफ द सॉयल फॉर्मेशन. वी नीड टू रीड अबाउट द सॉयल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स है. एक तो पैरेंट रॉक हो गई. पैरेंट रॉक मतलब जिस रॉक से क्या है, वो घिस के क्या है, जो मिट्टी के कारण बाहर आए हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पैरेंट रॉक, जहाँ से वो मिट्टी मतलब बाहर निकली है. इसके अलावा रिलीफ हो गया है कि जो डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं बाहर पहाड़ से आए, और पहाड़ के आने के कारण जो डिपॉजिट्स बैंक से किनारे हो जाते हैं, तो दे आल्सो क्रिएट ए सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. तो डिपॉजिट्स किसके नाम से जाने जाते हैं, दे नोन एज द रिलीफ. इसके अलावा फौना, फ्लोरा एंड माइक्रोसिस्टम, तो उसके कारण फ्लोरा एंड फौना के कारण भी क्या है वहाँ पर इट आल्सो इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, जस्ट बिकॉज जिस एरिया में जिस टाइप के पेड़ पौधे होंगे उनमें जो ह्यूमस की क्वांटिटी होगी, दैट विल आल्सो क्रिएट दैट विल आल्सो प्ले द रोल ऑफ, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे थे डिके होकर क्या करते हैं, ये भी मिट्टी बन जाते हैं. ठीक है, और उसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स. इसके अलावा क्या है, टाइम एंड क्लाइमेट. टाइम डिसाइड्स द थिकनेस ऑफ सॉइल. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई कैन आस्क यू इन एनी टाइम इन नियर फ्यूचर, कि which determines the thickness of the soil. So it is time. And then last thing is the climate. Climate भी क्या एक बहुत prominent role play करता है soil formation में. Now we will read about the degradation of soil and conservation measures. Okay, so factors like deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rain wash, landslides and floods. So there are multiple factors which we can attribute to the degradation of the soil. बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या है, जो सॉयल है उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, बहुत कम होती जा रही है. एंड उसमें बहुत सारा एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. तो जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होती है तो जो हमारी जो सॉयल है वो ज़्यादातर क्या होती जा रही है, सैंडी होती जा रही है. डेजर्टिफिकेशन क्या है, उसके कारण बढ़ता जा रहा है, रेगिस्तान का जो एरिया है उसका एक्सपेंशन हो रहा है. इसके अलावा ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब घास क्या है हमारे जो कैटल्स है, अब क्योंकि एज वी नो दैट पहले ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम था, अब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ साथ क्या जो कैटल्स की जो संख्या है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली. तो उसके कारण क्या ओवर ग्रेजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा घास चराई जा रही है खेतों में या पहाड़ों पे, या आप बोल सकते हैं मीडोज एंड पेस्टल लैंड्स में. तो उसके कारण क्या है, जो घास होती है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, जो मिट्टी है वो बह के क्या है पानी के साथ निकल जा रही है. तो उसके कारण क्या हो रहा है, एक सॉइल का इरोजन हो रहा है. इसके अलावा क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के कारण क्या है, जो फर्टिलिटी है हमारी लैंड की और सॉइल की, दैट इज डिग्रेडिंग डे बाई डे. एंड उसके अलावा लैंडस्लाइड्स हैं एंड फ्लड्स हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग ए प्रोमिनेंट रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल्स. इसके अलावा बट देन अगर डिग्रेडेशन हो रहा है, देन देर आर सर्टेन थिंग्स which has been introduced there to conserve the soil, and these methods are like, first one is the mulching. Mulching में क्या होता है कि between the plants you put some stray, तो जो straw, तो straw को जैसे plants होते हैं उनके बीच में क्या है भूसा रख दिया जाता है, ताकि जब बारिश उरिश आए तो क्या है कि वो जो बीच का जो जगह है वहाँ से मिट्टी बहे ना. ठीक है, सो दैट दे कुड नॉट लूज दैट सॉइल. तो उसके लिए क्या है, बीच में स्ट्रॉ रख दिया जाता है, भूसा रख दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है. सेकंड इज द कंटूर बैरियर्स. कंटूर बैरियर्स मीन्स, कंटूर्स का मतलब होता है दोज एरियाज विच बिलोंग्स टू द सेम हाइट. तो उसमें क्या होता है कि दो बराबर हाइट वाले एरियाज के बीच में क्या है, हिली एरियाज में आप क्या करते हो, एक बीच में एक ट्रेंच खोद देते हैं, एंड देन उसके कारण जो पानी होता है, जो बरसात होता है या जो मिट्टी होती है वो सीधा उस ट्रेंच में जाके गिरती है, और इसके कारण क्या है, जो सॉइल का इरोजन है उसको रोक दिया जाता है. थर्ड वाज इज द रॉक डैम. तो रॉक डैम मीन्स कि स्लोप्स वाले एरियाज में क्या होता है कि रॉक्स की बड़ी बड़ी डैम बनाए जाते हैं, सो दैट जो मिट्टी है उस वो पूरी तरीके से ना बह पाए, एंड in that way they could preserve the soil. Third one is the fourth one is the terrace farming. So as we have seen in the mountain and hilly areas, there is terrace farming which is practiced there. So terrace farming में we see that
एक स्लोप्स को क्या है इस तरीके से काटा जाता है कि जो अगर अगर इफ वी डू फार्मिंग इन अ स्लोप, तो स्लोप में क्या होगा, सारी मिट्टी नीचे आ जाएगी। बट टेरेस फार्मिंग क्या होता है, बिल्कुल इस तरीके से काटे जाता है। आपने देखा होगा सीढ़ीदार खेत, इसके कारण क्या है कि एक मिट्टी आए तो दूसरे खेत में जाए, फिर वहां से जाए तो तीसरे में आए। सो इन दिस वे वी प्रिजर्व द सॉइल, सो दिस hampers the process of the soil erosion. Okay, so and the first final one is the intercropping. So intercropping में क्या होता है कि हम दो फसलों को एक साथ बोते हैं एंड अलग अलग टाइम पे बोते हैं. सो that's how we preserve the soil. So this was all for today. So today we have read about the soil, and I was just in a hurry just because uh, my memory was running out, so I have to be very fast today. So sorry for that, but as I have to preserve my memory in order